So if you submit a paper in our journal and you get a desk rejection, then can be I am the one who is going to review that. So I normally review about 60 to 70 manuscripts every week on my platform. So let's start with our presentation. So today's topic is common pitfall in scientific writing and how to avoid it. So basically we are we are not native English speakers. In lot of our manuscript we come across a comment where they said that manuscript should be revised by native English speakers. So what is native English speakers? Normally हम लोग हिंदी बोलते हैं और जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं हम उसको मानसिक तौर पे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले हमको बहुत अच्छी तरह ट्रांसलेशन सिखाया, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना सिखाया गया, बट जब हम स्कूल में थे तो हमें ट्रांसलेशन पे बहुत ज़्यादा जोर होता था। बट अब हम उतना अच्छा ट्रांसलेशन पे जोर नहीं देते, हम मानते चलते हैं कि इंग्लिश मीडियम में सबको ट्रांसलेशन आते हैं। बट देयर आर फाइनल पॉइंट्स इन ग्रामर व्हिच वी मिस व्हेन वी आर राइटिंग। एंड अगेन हम 12th के बाद इंग्लिश पढ़ते हैं, हमको लगता है कि हमें इंग्लिश आती है और हम सब कुछ करते रहते हैं, स्टार्ट राइटिंग। So these are the common points which I find from the non-native English speakers mentioned. It's not only about India, it's all about other countries like China, Korea, Japan, Turkey, Iran. So these are like very powerful countries which produce a lot of research. So यहाँ पे जो कमियाँ आती उसको हमने डिस्टिल करके एक टॉप बनाया कि what we can do to improve. So at least text rejection ना हो. Manuscript go to the scientific reviewers for a scientific content review. So let me introduce you to my company. I belong to Thema Group. Thema Group is 130 years old company. We are headquartered in Stuttgart and we are offices in every continent. And in India we started operation in 2008. So my introduction is done. If I skip this slide, so here is our product portfolio. So we basically mainly concentrate on organic chemistry and now diversifying into sustainable chemistry and interdisciplinary research. So we have sustainability and circularity, drug research, pharmaceutical front, synthesis, synforms, syntypes, organic materials, synlet, synopen, pharmaceutical, SOS, science of synthesis, whose demo I will give you after this talk, Planta Medica Open, and hormone and metabolic research. So these are the journals which are among these journals we are like 60 years old journal. Like synthesis is 60 years old journal. Planta Medica is very reputed journal in natural product. It's very tough to publish in Planta Medica. We have a rejection rate of like 99%. So every year we got somewhere about 1000 manuscript and we publish like 50 to 60 odd manuscript. Just to give you an idea, that is the standard that Planta Medica has maintained. So synthesis is currently led by Professor Mark Morgan and Synlet is currently led by Professor Devda Mehdi. We also have a lot of Indian editors on our board. Dr. Namrata Rastogi from CDI, she is in your city, she is on our board. She also does one special issue with us just now in typochemistry. She specializes in typochemistry. Then we have Nitin Patil sir, Balram sir, P.T. Vidu sir, and Shantanu sir on our board. These are our open access. As you know, there is a lot of open access movement that science should be free to read is going on. So that is, we have two open access journals, SynOpen and Organic Materials. SynOpen is by Professor Oliver and Organic Materials is led by Professor Michael Marshall. Both are the leaders in their fields. And we also have Indian editors in our board like Professor Raju Reddy, Professor T. Punyamurthy and Professor Vivek. And if you are doing research in pharmacy or drug medicinal chemistry, we also have a portfolio area also. Like a Planta Medica, I told you, drug research, pharmacopsychiatry, pharmaceutical drugs and pharmaceutical substance. Pharmaceutical substance is a database which is more of industrial orientation.
then we adapting now. And then we launched this year the new journal, Sustainability and Circularity. Now we have started publishing. This is again for sustainability and green chemistry that we are doing, and we published also the articles in this. Okay, so these are the articles which are online. If you are working on sustainability and circularity, you are most welcome to submit. And so here is something which we do very innovative, is select crowd review. Normally when we submit a paper, we normally want our review to get back very soon. So we do this something what we call as select crowd review. In this we have a panel of somewhere about 100 to 70 to 100 reviewers. They are all very good reviewers. When you get the manuscript, the crowd reviewer editor decides whether the manuscript should go to the crowd. If he or she thinks that it should go to the crowd, it goes to crowd. It open to crowd for about 72 hours, 48 to 72 hours. People give the comments, and then these comments are given back to the authors, and you will get your decision, paper acceptance or rejection within 48 hours to 72 hours. And it is a quality review. It's not a review from other kind of like a predatory journals. We can say that. Plus, we also have something very interesting in SynOpen. This is graphical abstract. So normally, graphical reviews basically, not the abstract, graphical reviews. So normally, if you have published a review article, you know it is very tedious to write. Reviews are very long. But whenever we read, जब भी हम रिव्यू आर्टिकल पढ़ते हैं, तो उसके साथ जब हम पढ़ते हैं, हम नॉर्मली रिसर्च स्कीम्स देख रहे होते हैं. हम रिसर्च स्कीम अपनी आइडेंटिफाई करते हैं, मुझे क्या चाहिए, और उसके बाद जो रेफरेंस है वो देखते हैं. So why we should write so much and waste time? Normally, if you write a good quality review, it takes like 4 months to write, like 150 to 200 references in there. So we cut short that. Our editor, which was SynOpen Professor Lawrence Harwood, he cut short that process. He said we just are going to create graphical reviews with the reaction schemes are there. The maximum word that we allow in this type of article is 1000 to 1500 words. And rest is key. If you go to SynOpen website, these are free to read. Like it's open access, you can read. And if you want to submit from your group, you are most welcome. There is going to be no APC. I will get APC waive off for these graphical reviews. But proposal need to be passed by editor. So we, as I am telling you, I am an acquisition editor. So I also commission a lot of special issues. So I just commission especially into synthesis on CH activation. Anybody working in CH activation? So we have a very good review by Professor Purna Murthy and Professor Anil Kumar from MITS Milan. It has like 29 very good papers, and in that 29 papers there are about 4 very good review articles. Similarly, anybody working on medicinal chemistry, bioactive molecules. So this is a process, API process chemistry special issue that we have commissioned. This is from with the Professor Steve Zhao from SUSTech University, China, and Professor Joydev Lam. So it has about again 23 manuscripts, very good quality manuscript. Then we have anybody working on carbohydrates. So we have this special issue on carbohydrates, 2 volumes, which has been guest edited by Professor V.K. Tiwari from BHU. Similarly, in Synlet, currently we are doing these 2 special. If you are working on CS bond formation or cleaving or water in, like green chemistry, water in organic reaction, water on or water in organic chemistry, you are welcome to submit manuscript. I am looking forward. Similarly, in Synlet, we also do a lot of special issues. 2 very good special issues currently going on, and they will be published shortly. Currently, we are having 3 these manuscripts that I am looking for. These are the transition metal catalyzed organic reactions, emerging trends in organic chemistry from India. So this is a issue which is focusing on chemistry, which is done in universities. Normally, a lot of
emphasis on given on IIT, ICERS or CSIR, but this is special focus on the chemistry, the good chemistry that we are having in our universities. We are also going to do webinar on this soon. Then we have a small molecule in medicinal chemistry. So this is a special issue where the bioactive compounds you synthesize and that kind of work we are doing. Okay, now I come to my main talk. This is about me and my company. So how many of you have published a paper? Research paper. Okay, one. Okay, so what is good writing? What is a good scientific writing? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक अच्छा रिसर्च पेपर क्या होता है या एक अच्छी साइंस की किताब क्या होती है, विच इज द फेवरेट टेक्स्ट बुक जो आपने पढ़ी, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, किसी की? क्लेडन पढ़ी है सब? क्लेडन से पहले मॉरिसन एंड बॉयड पढ़ी है? मॉरिसन एंड बॉयड और क्लेडन में क्या फर्क है? एक टाइम पे मॉरिसन एंड बॉयड सबकी होती थी कि सबने पढ़नी है, बट अब मॉरिसन एंड बॉयड कोई नहीं पढ़ता, सब क्लेडन पढ़ते हैं. सो क्लेडन और मॉरिसन एंड बॉयड में फर्क क्या है? लिखने का फर्क है ना. जब आप क्लेडन पढ़ते तो आपको लगता है कि ऑथर आपसे बात कर रहा है ना. आप मॉरिसन एंड बॉयड पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं बहुत इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग है. वो आपसे फॉर्मल, मतलब सॉरी, इट्स अ वेरी फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग मॉरिसन एंड बॉयड, कि वो आपसे बात नहीं कर रहा, उसने लिख दिया कि हाँ अगर SN2 हो रहा है तो बैक रिएक्शन होगा, किस तरीके से होगा. नहीं, आप अगर वहां पे जाके लगे पढ़ेंगे मॉरिसन एंड क्लेडन को, तो वहां पे आपको लगेगा नहीं वो आपसे बात कर रहा है, आपको समझा रहा है. जैसे आपके दोस्त आपको समझाते हैं पेपर से पहले कि अच्छा बैठ, तुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं समझाता हूँ कैसे होगा. सो ये अच्छी साइंटिफिक राइटिंग का डिफरेंस है. यही काम में आता है जब आप अपना रिसर्च पेपर लिखते हैं. आप रिसर्च पेपर लिखते हैं, आपने पब्लिश करा, और आप उसके बाद व्हाई वी पब्लिश आवर रिसर्च, हम रिसर्च पब्लिश क्यों करना चाहते हैं? पहला क्वेश्चन कि लोगों को पता चले हमने काम करा, अच्छा काम करा और उसका कुछ साइंटिफिक इनपुट है ना. बट अगर वो पेपर इतना कम्बरसम होगा पढ़ना कि मुझसे पढ़ूंगा ही नहीं कोई, अगर मैं पढ़ रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे छोड़ दूंगा, मैं कोई और देखूंगा. सो जब भी हम पेपर लिखें साइंटिफिक, वो इतना आसान वाली शब्दों में होना चाहिए कि लोग उसको पढ़ के समझ सकें, साइंस अच्छी हो और उसके बाद वो पढ़ना चाहे. ये एक डिफरेंस कि एक साइंटिफिक पेपर, अच्छा साइंटिफिक पेपर जो होता है उसमें क्या चीज होती है, डिस्कशन या एब्स्ट्रैक्ट. सबसे डिफिकल्ट चीज दो ये चीज होती है लिखनी रिसर्च पेपर में अकॉर्डिंग टू मी, कि डिस्कशन अगर आपने अच्छा लिखा, आसान भाषा में लिखा और लोगों को समझ में आ रहा है कि आप क्या अपनी बात करना चाह रहे हैं. पेपर राइटिंग इज स्टोरी टेलिंग. अगर आपने वो डिस्कशन में कर लिया तो लोग आपके पेपर ज्यादा समझ करेंगे. एक ये बात है. आप लोगों ने करंट साइंस पढ़ी है कभी? मैगजीन जो आती है इंडियन अकेडमी, अगर आप ये यहाँ पे शायद लाइब्रेरी में भी हो, नहीं तो वो ओपन एक्सेस भी है, आप वहाँ पे जाके पी बलराम के एडिटोरियल्स पढ़िएगा. उससे अच्छा साइंटिफिक राइटिंग का आपको इंडिया के अंदर एग्जांपल नहीं मिल सकता. कि आप कितने भी, उन्होंने बहुत अच्छी उनकी सीरीज है. आई थिंक उन्होंने एडिटरशिप 2013-2014 में छोड़ दी थी एंड 2007 या 8 से वो एडिटर थे. आप उनको पी बलराम डाल के सर्च करेंगे, उनके बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, आप पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कितने आसानी से, कितनी सही से उन्होंने समझा. सो साइंटिफिक कम्युनिकेशन भी आपको बहुत सारी जॉब दिलवा सकता है. बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छी सैलरीज देती हैं अगर आपको साइंटिफिक कम्युनिकेशन आता हो. तो इसलिए साइंस को लिखना आसान भाषा में जरूरी है. तो मेरी टॉक के साथ आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि जो मेन सेक्शन होते हैं हमारे पेपर्स के, उसके अंदर हम कहाँ गलतियाँ करते हैं. जैसे टाइटल है, टाइटल के अंदर क्या क्या हमको चीजें अवॉइड करनी चाहिए. एब्स्ट्रैक्ट है, उसमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए. रिजल्ट एंड डिस्कशन है, उसमें क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या रखना चाहिए. लैंग्वेज है वो, मतलब मैं पहली चीज ये कहता हूँ, तब जब भी मैं बहुत ही लेक्चर देता हूँ, मैं पहली चीज ये कहता हूँ, जाकर अपनी 6 से 8 क्लास तक की ग्रामर रिवाइज कर लीजिए जब भी आप PhD शुरू करें. उससे दो चीजें होंगी अच्छी, एक आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा और एक आपके गाइड के लिए भी बहुत अच्छा होगा. जब आपकी मैन्युस्क्रिप्ट चेक कर रहे हो, उन दोनों की लाइफ आसान हो जाएगी.
ठीक, क्योंकि मुझे आज तक याद है मैंने अपनी पहली मैन्युस्क्रिप्ट लिख के दी थी, तो मेरे जो गाइड थे उन्होंने ऐसे उठा कर मेरे ऑफिस से बाहर फेंकी, वो पूरी लाल थी। मैं शाम को देके गया उनको कि सर ये लिख दिया मेरा, ये ना फर्स्ट ड्राफ्ट। अगले दिन में आया, कहते मैंने बाहर नोट करा, मैंने कहा सर वो मैन्युस्क्रिप्ट बता देगा इसको क्या लिखा है। तो हर किसी के साथ आप लिख कर ही सीखते हैं, राइटिंग इज आर्ट। तो हम बात करते हैं टाइटल की। टाइटल के अंदर 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका टाइटल बहुत बड़ा होना चाहिए, 2 बातों के। क्यों? आप लोग अगर आपका टाइटल बहुत बड़ा होगा, एक तो वो जब हम उसको सर्च करेंगे वो सर्च के अंदर नहीं आएगा। आप कभी भी सर्च करते हैं साइंस फाइंडर पे या गूगल स्कॉलर पे, तो आप पहले 10 पेज के रिजल्ट ही देखते हैं, आप उससे ज्यादा के रिजल्ट पे निकालते हैं। ठीक है, अगर मुझे अपने पेपर का व्यू बढ़ाना है, मैं चाहता हूँ लोग मेरा पेपर पढ़े, साइट करें, तो मुझे उस पहले 100 रिजल्ट्स के अंदर आना या उस पहले 10 पेज में आना। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है अपना टाइटल बहुत लंबा है। आपका टाइटल 15 से 20 शब्द का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ये क्यों है? इसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। So this is what is search engine optimization. अगर आप Google Scholar देखेंगे तो उसपे कौन सा रिजल्ट पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है, वो एल्गोरिथम डिसाइड करता है। तो एल्गोरिथम डिसाइड करने के लिए यहाँ पे करता है। अगर वो बहुत बड़ा होगा तो एल्गोरिथम उसको बहुत कम वेटेज देगा, वो बहुत पीछे चला जाएगा, क्योंकि एल्गोरिथम को लगेगा ये गार्बेज जिब्रिश है। छोटा होगा उसको लगेगा कंसाइज से सेंटेंस बना रहा है, क्योंकि वो मशीन है, उसको नहीं पता क्या है, क्या आप कहना चाह रहे हो। तो इसलिए दूसरा, बहुत सारे पेपर हमारे पास आते हैं जिसके अंदर टाइटल का और जो काम है उस पेपर का कोई लिंक नहीं होता। तो टाइटल के अंदर आप जो कर रहे हैं, ट्राई टू कन्वे मिनिमम वर्ड्स में। एक और चीज बहुत अच्छी है, जब भी आप लिख रहे हैं इंग्लिश में तो एक्टिव वॉइस में लिखिए। एक्टिव वॉइस में आप कम सेंटेंस के अंदर, कम वर्ड्स के अंदर अपनी बात कहते हैं, तो वो लोगों को ज्यादा समझ में आती है। एक और चीज, ये वाले फ्रेजेस मत यूज करिए अगर आप कर रहे हैं। uses phrases like investigation, study, novel, precise, I get. क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मुझे कुछ सुना हो, there is something what we call as paper mills. तो चाइना के अंदर बहुत सारे ऐसे फेक पेपर छापने वाली कंपनीज हैं, उनको हम पेपर मिल्स कहते हैं। And these are what we call as torture cases. So अगर आपकी मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर ये होंगे तो स्कॉलर ऑटोमेटिकली आपकी मैन्युस्क्रिप्ट को ब्लैक कर देगा हमको। या एक और हमारा जो इंटीग्रिटी हब होता है आजकल, जो कंसोर्शियम है उसका पब्लिशर का, उसके लिए फ्लैग कर देगा। ट्राई नॉट टू यूज दैट। प्लस ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव एडजेक्टिव, हम नॉर्मली ट्राई करते हैं साइंस के अंदर एडजेक्टिव यूज ना करें, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा व्हाट वी कॉल सब्जेक्टिव है, मतलब आपके लिए नोवेल है। हो सकता है कि आपने देखा 20 साल के पेपर नहीं हुआ, बट मेरे पास पेपर रिव्यू होने आया और हो सकता है मेरी नॉलेज में वैसे ही काम, तो मैं वहीं पर आपका पेपर टेक्स्ट रिजेक्ट कर दूंगा, या वहीं पे जो रिव्यूअर होगा आपका पेपर रिजेक्ट कर देगा, लेकिन देयर इज नो नोवेलिटी, द ऑथर क्लेम दिस नोवेलिटी इज बीन साइटेड इन दिस पेपर दिस ईयर। सो कभी भी बहुत ज्यादा एडजेक्टिव्स, हम कहते हैं ना अतिशयोक्ति अलंकार यूज नहीं करना है। कि आप बहुत ज्यादा कहेंगे तो बहुत ज्यादा आपको सबमिट करना पड़ेगा। कभी भी एक्रोनिम्स टाइटल में यूज नहीं करना है किसी भी प्रोसेस के। मतलब हम जैसे क्लिक केमिस्ट्री का CUCC करते हैं, कोई भी एक्रोनिम हो वो टाइटल में नहीं करना है। आगे ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात है, क्योंकि एक्रोनिम को वो कभी भी पढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए एक्रोनिम कोई सेंटेंस मतलब कोई वो नहीं बनाएगा, कोई जिब्रिश हो गया तो वो उसको लो वेटेज देगा। सो जैसे ये टाइटल है, investigation of additive effects in enantial selective copper catalyzed CH insertion and aromatic addition reactions of alpha diisocarbonyl compounds। क्या समझ में आया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबने पढ़ रखी है, क्या समझ में आया इससे? क्या मैं इसे सिंपलीफाई कर सकता हूँ? How I can make it more simple? Do I need this investigation of additive effects in title? नहीं। I can normally study the selective copper catalyzed CH insertion and aromatic addition reactions of alpha diazonal carbonyl compounds। आपको ये पहले वाले इतने पार्ट की जरूरत भी नहीं है। सो आपको वो ध्यान रखना है, मतलब आप जितने आलसी हो सकते हैं लिखने के लिए, मतलब हम
मतलब मैं तो बहुत ही आलसी था लिखने के लिए जब मैं बचपन में था, बट आप जितना कम के अंदर ज़्यादा बता सके, सिंपल भाषा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम इंडियंस के साथ क्या है, हम अपनी इंग्लिश से इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमको इंग्लिश दिखानी है कि हमें इंग्लिश आती है। तो नॉर्मली हमें वो इंग्लिश इम्प्रेस करने के लिए दिखानी है सिंपल इंग्लिश, 10वीं क्लास के बच्चे वाली इंग्लिश लिखनी है हमने पेपर में, और जो हमने करा सिर्फ वो कॉम्प्लिकेट करना है, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट मैन्युस्क्रिप्ट का सबसे आखिर में लिखा जाता है, ठीक है? बट ये सबसे बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि जो भी बंदा आपका पेपर उठाएगा पढ़ने के लिए वो इसी पर उठाएगा। आप गूगल स्कॉलर पे जाएं, आप साइंस फाइंडर पे जाएं, स्कोपस पे जाएं, वो आपको पहले एब्स्ट्रैक्ट देगा। आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के जज करेंगे मुझे वो पूरा पेपर खोलना है कि नहीं, ठीक? इसलिए एब्स्ट्रैक्ट अच्छा लिखा होना चाहिए। सबसे पहली बात, आपका जो एब्स्ट्रैक्ट हो वो 150 से 250 शब्द हो। हर जर्नल की अपनी गाइडलाइंस होती है, वो 150 से 250 शब्द होंगे। उसके अंदर आपका एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन सेम नहीं होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो इंट्रोडक्शन होता है उसी को एब्स्ट्रैक्ट में कर देते हैं, बट नहीं। दैट शोज कि आप लोग नॉट अ वेरी गुड राइटर। ये प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब मैं आपको अगर पोस्ट जॉब के लिए या जॉब के लिए हायर करना चाहूँगा और मैं कहूँगा कि आप अपने बेस्ट 3 पेपर दे दीजिए, 4 पेपर दे दीजिए, या आप किसी कोई पोस्ट जॉब के लिए जा रहा हो तो आप कभी भी अप्लाई करेंगे तो दे एप्लीकेशन में जैसे सेंड योर 4 बेस्ट पेपर्स, ओके? इट इज नॉट अबाउट द इम्पैक्ट फैक्टर। कभी भी आप पोस्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, नेवर थॉट कि हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर वाले पेपर भेजें, बट आपको जो लगता है कि आपका वो बेस्ट काम था पीएचडी के अंदर, वो वाला भेजिएगा। तो उसके अंदर क्या होता है, जब मैं एज अ पर्सन वांटेड टू हैव, मैं पढ़ूंगा, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद मैं इंट्रोडक्शन पढ़ता हूँ। 90% ऑफ टाइम ऐसा होता है कि एब्स्ट्रैक्ट की फर्स्ट लाइन और इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन सेम होती है, क्योंकि जब तक आप यहाँ पे लिखने पहुंचते हो आप मैन्युस्क्रिप्ट के साथ थक चुके हो, आपके तो बस ये निकल जाएगा, ठीक है? बट जहाँ पे आपने 1 महीना लगा दिया तो 1 दिन इस पे भी लगा सकते हैं, ठीक? तो आपका एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन की कॉपी नहीं होना चाहिए, बट आपके एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो आपका टाइटल है उसके वर्ड्स होने चाहिए। अगेन ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हम एक और चीज बताऊंगा इसके बाद। तो अगर आपके जो टाइटल के अंदर वर्ड है, कोशिश करिए आपके एब्स्ट्रैक्ट में वो वर्ड्स 2 से 4 बार रिपीट हो जाए, तो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो पेपर ऊपर आता है। Missing information or too much of information. Missing information normally not the case, but too much of information होता है नैनो पार्टिकल और वो मटेरियल साइंस के पेपर्स में। मतलब मैंने पेपर देखे और उन्होंने पूरा का पूरा सारा डाटा डाल दिया है कि आपका डीएनएस का है, नैनो पार्टिकल का साइज क्या है, सब कुछ आपको एब्स्ट्रैक्ट होने देने की जरूरत नहीं होती, इंक्लूडिंग एब्रिविएशंस एंड जार्गन्स। एब्रिविएशंस यहाँ पे भी नहीं आए। एक्सेसिव यूज ऑफ एक्टिव वॉइस, मैंने कहा एक्टिव वॉइस में लिखिए अच्छी बात है, बट अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव वॉइस यूज करेंगे तो क्या होगा, मतलब हो जाएगा किसी भी चीज की अति अच्छी होगी। तो बहुत ज्यादा एक्टिव वॉइस करेंगे तो जो आप साइंस बताना चाह रहे हैं दैट लॉस इट मीनिंग। सो नेवर यूज एक्सेसिव ऑफ एक्टिव वॉइस। शेयरिंग डिटेल एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इन डाटा, मैंने ये भी देखा 600 शब्द का एब्स्ट्रैक्ट जिसके अंदर सब कुछ था, उन्होंने पूरा लिखा था। प्लीज मत करिए। फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एन आर्टिकल एंड फर्स्ट लाइन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पासिंग, ये क्रिमिनल है अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको हायर करेगी वो भी ये देखेगी कि आप साइंटिफिक रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि डाटा जो भी आप जनरेट करोगे लैब में कहीं पे भी काम करोगे, चाहे आप एमएससी के स्टूडेंट हो, आप यहाँ से भी जाकर एमएससी के लिए भी बात करोगे, बात जॉब करोगे, तो उन सब के अंदर आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी होगी। अभी हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल होता है, एक बच्चा था तो हम उससे सब कॉपी कर लेते हैं, है ना, बट वहां पर आप जाओगे तो आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी पड़ेगी। उस रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी रिपोर्ट राइटिंग बहुत अच्छी है। दैट इज द स्किल दैट विल हेल्प यू अगर आप खुद लिखना चाहोगे तो इसलिए फर्स्ट सेंटेंस ऑफ आर्टिकल एंड फर्स्ट लाइन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट शुड नॉट बी सेम, प्लस दीस फ्रेजेस इन द स्टडी और वी रिपोर्ट हियर, ऐसे शब्द नहीं चाहिए हमें एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ये बहुत अच्छा एब्स्ट्रैक्ट है।
So this is extract from Uda's lab, I said Pune से. So this is like one of the example. If you see, मैं 2 मिनट देता हूँ तो एक बार पढ़िए. So टाइटल आप देखेंगे इसका पूरा टाइटल क्लियर है. उन्होंने क्या करा आपको बता दिया उन्होंने. आप पढ़ेंगे इसके अंदर केमिस्ट्री की उन्होंने डिस्कस कर दी. उन्होंने क्या करा बिल्कुल पूरा उन्होंने जहाँ से पूरा साइंस जो उन्होंने करी थी वो पूरी डिस्कस कर दी. उन्होंने बिल्कुल राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दी. कोई रिएक्शन कंडीशन डिस्कस नहीं करी. रिएजेंट्स और केमिस्ट्री डिस्कस करके उन्होंने इसके अंदर. So this is like on science and within quarter it is exactly 150 words. Different from introduction. जो ये पेपर है you can look this paper. This is on synthesis and synthesis. इनका कोई भी मैच नहीं करता. इंट्रोडक्शन और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर एक लाइन सेम नहीं है. ठीक एंड कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता. So this is how you write a good abstract. कई बार ये एब्स्ट्रैक्ट बहुत काम आएगा लिखना जब आप ऐसी कॉन्फ्रेंसेस के लिए अप्लाई करते हैं जहाँ पे वो आपको ट्रैवल ग्रांट अवार्ड देते हैं. लाइक आप कभी ACS अमेरिकन कैपिटल सोसाइटी या उसकी किसी मीटिंग के लिए अप्लाई करें तो उसमें कई बार सिलेक्शन होता है ट्रैवल ग्रांट का बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया. तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट के बेसिस पे ये डिसाइड की काम कितना अच्छा कितना बुरा है उसके बेसिस पे वो आपको ट्रैवल ग्रांट. वहाँ पे ये आर्ट बहुत काम है. आई गॉट लाइक राइटिंग गुड एब्स्ट्रैक्ट landed me पूरा 15 दिन का समर स्कूल with European. So that is also a key. So introduction. So introduction again सबसे abused section है references डालने का. मतलब ऐसे मैंने पेपर देखे हैं जहाँ पे उन्होंने इंट्रोडक्शन के 5 पैराग्राफ के अंदर 120 रेफरेंसेस डाले. तो प्लीज रेफरेंसेस वही डालिए जो आपने पढ़े हो. ठीक है जो आपको लगता है आपके इंट्रोडक्शन में काम में आए. नॉर्मली इंट्रोडक्शन 4 पैराग्राफ का होना चाहिए. ठीक है जब भी हम पैराग्राफ की बात कर रहे हैं पैराग्राफ के अंदर कितने वर्ड्स होने चाहिए. हाउ मेनी वर्ड्स शुड बी इन पैराग्राफ. 250 to 300 वर्ड्स आइडियल. ठीक है 250 से 300 शब्द का पैराग्राफ होना चाहिए और हर सेंटेंस 15 से 20 का होना चाहिए. अगेन ये हम रूल है अच्छी राइटिंग का. ठीक है क्यों क्योंकि यहाँ पे अगर शॉर्ट सेंटेंस होता है जो रीडर होता है उसका अटेंशन स्पैन बना रहता है. अभी तो हमारा अटेंशन स्पैन और कम हो गया है देख के. ठीक है ना. तो उसको अटेंशन स्पैन को पकड़े रहने के लिए पैराग्राफ छोटा होना चाहिए सेंटेंस छोटा होना चाहिए. ठीक. सो इंट्रोडक्शन के 4 पैराग्राफ होने चाहिए. 4 पैराग्राफ में क्या होना चाहिए आपको कहानी बनानी है. आपने क्यों रिसर्च करी वो यहाँ पे आप बताओगे रीडर. ठीक है पहले पैराग्राफ में आप टॉपिक इंट्रोड्यूस कर सकते हो. सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप गैप एरिया इंट्रोड्यूस कर सकते हो. थर्ड के अंदर आप बता सकते हो गैप एरिया को फिल करने के लिए पहले क्या काम करा गया है और उनके ड्रॉबैक्स क्या थे. और चौथे पैराग्राफ के अंदर आप अपना हाइपोथेसिस डिस्कस कर सकते हो. दिस इज लाइक अ वेरी गुड स्ट्रक्चर्ड इंट्रोडक्शन. नॉर्मली इंट्रोडक्शन के अंदर कोशिश करिए आप जो लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन आपका उसके अंदर प्रेजेंट वॉइस के अंदर लिखा जाएगा. बाकी आपका जितना पेपर होगा वो पास्ट में लिखा जाएगा. सॉरी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस. सो इंट्रोडक्शन प्रेजेंट में आएगा क्योंकि आप बता रहे हो कि ये अभी हो रहा है. आप जब पेपर बाकी लिखोगे डिस्कशन और वो सब वो पास्ट टेंस लिखता है. ठीक ऐसे ही रिव्यू और रिसर्च आर्टिकल के अंदर रिव्यू आर्टिकल हमेशा पास्ट टेंस में. हम कई बार ऐसा भी देखते हैं कि बच्चे हमारे पास रिव्यू आर्टिकल है उसके अंदर जो पूरा टेंस है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखा हुआ है. तो ये भी ध्यान रखने की बात है. हम नॉर्मली रखते नहीं है दिमाग में लिखते टाइम. बट दिस इज अगेन अ गुड पॉइंट टू कीप इन माइंड. देन लैक ऑफ कोहेरेंस एंड फ्लो. आप 4 पैराग्राफ पढ़ोगे उन 4 पैराग्राफ के अंदर कोई भी लय और ताया नहीं बनेगी. हम कभी भी पढ़ना चाहते हैं कुछ जिसके अंदर एक फ्लो बना. ठीक है तो वो होना चाहिए. तो सबसे अच्छा तरीका ये जब भी आप लिख लो आपकी अपने जो लैबमेट हो उसको दे दो. लैबमेट से भी अच्छा मैं जो करता था आई गिव इट टू माय सिस्टर टू रीड क्योंकि वो साइंस से नहीं थी. क्योंकि साइंस वाले को समझ में नहीं आता कि फ्लो बन रहा है कि नहीं. क्योंकि हम दिमाग में फ्लो बना लेते हैं क्योंकि आप सेम लैब तो सेम काम हो रहा है तो आपको आप फ्लो बना लेंगे. आप किसी नॉन साइंस वाले बंदे को दोगे जो घर में है वो बताएगा कि पढ़ने में फ्लो बन रहा है कि नहीं. देन नॉट डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम.
हम इंट्रोडक्शन के अंदर हाइपोथेसिस नहीं दे रहे हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या कर रहे हैं। देन फर्स्ट पर्सन एटीट्यूड लिविंग है कि लॉन्ग पैराग्राफ एंड सेंटेंस, लॉन्ग पैराग्राफ एंड सेंटेंस आर मेजर टर्म्स ऑफ इन आपके इंट्रोडक्शन के अंदर अवॉइड करिए, ठीक है। क्योंकि एक और चीज तो ध्यान रखना, जब मैं कह रहा हूं शॉर्ट पैराग्राफ, ये नहीं करना कि शॉर्ट पैराग्राफ करने के लिए एंटर मार दिया। सबसे अच्छा काम यही होता है, आपको गाइड बोलेगा ये बेटा पैराग्राफ बहुत बड़े हो रहे हैं, इसको छोटा कर देगा आप, तुम जाओगे और एक एंटर मार दोगे, पैराग्राफ चेंज हो गया। नहीं, वो नहीं करना है हमने, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे शिफ्ट बेसिस पता है सबको, सबने पढ़ा होगा शिफ्ट बेसिस। ये एक पेपर है, उसमें शिफ्ट बेसिस का, ये पेपर रिजेक्ट हो गया था बट मैंने इंट्रोडक्शन ये चुरा लिया वहां से। तो शिफ्ट बेसिस नेम द लीगेंड आफ्टर द साइंटिस्ट नेम क्यों, क्यों करना शिफ्ट बेसिस, हम बीएससी से पढ़ रहे हैं, मुझे क्यों चाहिए उसका फर्स्ट रेफरेंस, नहीं चाहिए। ऐसे ही वो 100-150 रेफरेंस होते हैं, और आपकी अगर मैन्युस्क्रिप्ट 2-3 बार इधर उधर हो जाए जर्नल में तो आपकी जिंदगी खराब हो जाती है। रेफरेंसेस को रिफॉर्मेट करके अगर आप रेफरेंस मैनेजर यूज नहीं कर रहे हैं, रेफरेंस मैनेजर कौन कौन यूज करता है, रेफरेंसेस से कौन सा रेफरेंस मैनेजर यूज करते हैं, एंडनोट। एंडनोट से भी अच्छा है, लाइक मैटलैब यूज कर सकते हो, ज़ेरोडो भी कर सकते हो, तो दे आर मच इजियर देन द एंडनोट आल्सो। So material and methods. Material and method is first section you should always write, and this is the section which give you credibility as a scientist. आपका काम रिपीट होता है कि नहीं, अगर आप साइंस कर रहे हो आपकी साइंस रिपीट होनी चाहिए। अगर आप बड़े शौक से कहते हो और गर्व से कहते हो मेरा काम मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, तो आपसे बुरा साइंटिस्ट कोई नहीं। ये ध्यान में रखना। अगर आपको लगे कभी भी अपनी लैब में कि मेरा हाथ का रिएक्शन सिर्फ मैं ही लगा सकता, मेरा जूनियर नहीं लगा सकता, तो आपसे बुरा कोई साइंटिस्ट नहीं। आपका काम ऐसा होना चाहिए कि मैं किसी भी बच्चे को दूं ये रहा प्रोसीजर, जैसे हम प्रैक्टिकल के अंदर करते हैं, लैब्स के अंदर, ये रहा प्रोसीजर और ये करो, ये रिजल्ट आएगा। दिस इज योर क्रेडिबिलिटी एज अ साइंटिस्ट। सो राइट अमाउंट ऑफ डिटेल, आजकल तो बहुत अच्छी बात है, हमारे टाइम तो हम इतनी डिटेल्स दे नहीं सकते थे, आप सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन में बहुत सारी डिटेल्स दे सकते हैं। दीजिए नॉट स्ट्रक्चरिंग मेथड सेक्शन प्रॉपर्ली, मेथड का सेक्शन होता है, पहले एक्सपेरिमेंट आएगा फिर कैरेक्टराइजेशन आएगा। कई बार हमको पेपर आता है जहाँ पे कैरेक्टराइजेशन स्टार्ट हो जाती है फिर मेथड आते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। प्लेगरिज्म, ये बहुत ही, सेल्फ प्लेगरिज्म के अंदर क्या होता है कि हमारी लैब्स के अंदर कुछ स्टैटिक मटेरियल्स बिल्कुल वैसे होते हैं जो वहां से हम स्टार्ट करें, तो वहां पे क्या होता है कि आपका सेल्फ प्लेगरिज्म बहुत सारा आ जाता है। उस सेल्फ प्लेगरिज्म से बचने का एक तरीका ये है, यू कैन यूज लॉट ऑफ पैराफ्रेजिंग टूल्स नाउअडेज। बहुत सारे पैराफ्रेजिंग टूल्स हैं, आप वो यूज कर सकते हो, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पैराफ्रेज कर सकते हो उसको, ठीक। प्लस अगर आपको लगता है कि अभी भी सेल्फ प्लेगरिज्म आ रहा है जब आप मैन्युस्क्रिप्ट चेक कर रहे हो, तो आप कोशिश कर सकते हो कि इस वाले मेथड को फिर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन में डाल देंगे, और यू कैन गिव रेफरेंस टू योर प्रीवियस पेपर। बट ऐसा मत करना कि जब आप मेथड दे दो, क्योंकि एक बहुत ही बेकार चीज होती है, हम एक रेफरेंस देते हैं जहाँ पे हमने देखा, वो तीसरा रेफरेंस होता है, चौथा रेफरेंस, और आप खोजते चले जाओ जहाँ पे जब मुझे खोजना है तो वो पता चलता है 5वां 6वां 8वें बार के जो रेफरेंस है उसमें प्रोसीजर करना है। अगर आप रेफरेंस दे रहे हो तो उस 8वें पेपर का रेफरेंस देना, आपने पेपर जहां पर आपने पढ़ा वहां पे जो खोज कर आप 8वें पेपर तक पहुंचे थे वो वाला रेफरेंस देना। दैट विल मेक यू मोर क्रेडिबल। आपको लग रहा है बहुत छोटी चीजें कौन ध्यान देता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें बहुत ध्यान दी जाती है अगर कोई भी आपको हायर कर रहा है। एक बात ध्यान रखना है, रिजल्ट्स, आपके पास रॉ डाटा होना चाहिए। मैं आपको रॉ डाटा का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली एक पेपर हमारे पास था रिव्यू के अंदर, एंड वो एक्सेप्ट हो गया, बट रिव्यूअर ने एक एनएमआर की FID फाइल मांगी और वो बच्चा चला गया था और वो FID फाइल जमा करके नहीं गया था अपने गाइड के पास, पेपर विड्रॉ हो गया। फाइनल एक्सेप्टेंस दे दी थी हमने, बट उसके अंदर जो रिव्यूअर ने कहा था कि
आई जस्ट वांट टू सी दिस, क्योंकि उसके अंदर एक पीक की नॉइजेस बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उन्होंने मैं एक बार देखना चाहता हूँ। रॉ डाटा रखिए, और रॉ डाटा अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपका काम अच्छा है, साफ है, बिल्कुल क्लीन है, आपने बहुत मेहनत से करा है, रॉ डाटा को रिपोजिटरीज के अंदर, फ्री डाटा रिपोजिटरीज होती है, उसके अंदर डिपॉजिट करिए, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी एज अ साइंटिस्ट। क्योंकि मुझे अपने काम की रिपीटेबिलिटी पे इतना यकीन है, मेरा एनएमआर लेना, मेरी एनएमआर की एफआईडी फाइल इस पेपर की रॉ डाटा की होगा, जिसे देखनी है डाउनलोड करो, सॉफ्टवेयर में खोलो और एनएमआर रिपीट आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। हमने कोई पीक ऐड और डिलीट नहीं, हमने कोई भी पीक ऐड और डिलीट नहीं किया। सो बट कभी भी रॉ डाटा को अपने पेपर में इंक्लूड नहीं करना है। ये वाला बहुत बार होता है जो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री पे काम कर रहे हैं। अगर आपने डीएफटी या एमडी सिमुलेशंस करे होंगे, तो मेरे पास पिछले साल एक पेपर आया था ईरान से, तो 224 पेज का पेपर था। जब मुझे साइन हुआ तो मैंने कहा मेरा पूरा आ गया, सो माय टारगेट वोंट बी कंप्लीटेड, बट उस 224 पेज में से 126 पेज सिर्फ डीएफटी के डाटा की जो फाइल आती है तो वो नहीं डाल दिया हमने। रेडंडेंसी मतलब आप एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं करोगे। इंक्लूड सेम डाटा बोथ टेबल एंड फिगर्स का। कई बार हमको होता है कि पेपर बड़ा नहीं हो रहा, पेपर बड़ा करना है, तो हम वही डाटा का पहले टेबल बनाते हैं, फिर उसका ग्राफ बनाते हैं। नहीं, आप ग्राफ बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ट्राई टू मेक गुड ग्राफ। एक है जर्नल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री सी के एडिटर इन चीफ प्रकाश कामत, ठीक है, आप प्रकाश कामत सर की वेबसाइट पे जाइएगा, उन्होंने वहां पे रिसोर्स दे रखे हैं हाउ टू मेक अ गुड ग्राफ्स, ठीक है, यूज एंड गो एंड स्टडी दैट। आप ग्राफ बनाइए, अच्छे बने हुए ग्राफ भी कई बार पेपर एक्सेप्ट करवाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन से मेरे को एज अ रिव्यूअर मेरे को पास 10 मैन्युस्क्रिप्ट आती है, बट अगर मैं एक ग्राफ से सब कुछ इंटरप्रेट कर सकता हूं तो मुझे अंदर पढ़ना नहीं पड़ेगा, मेरा टाइम बचेगा, तो पेपर के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपने देखा होगा ना कि सुंदर ग्राफ बनते हैं, सुंदर ग्राफ कैसे बनते हैं उन्होंने वो पूरा बता रखा। प्लीज देखिएगा उनकी वेबसाइट प्रकाश कामत, और वो मेरे ख्याल से अभी इंडिया भी आई है, लखनऊ के अंदर एक कॉन्फ्रेंस है अगले साल फरवरी में, शायद वहां पर आ रहे हैं। So figures showing too many variables and trends, नहीं, कई बार हम फिगर्स बनाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे, लाइक हमारे पास पेपर आया इसके अंदर ये है, इसमें 4 वेरिएबल्स हैं और इसमें फिगर आनी, आप ट्रेंड ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एज अ रीडर आपको लगेगा वो क्या है, 2 मिनट लगेंगे, तो वी आस्क पर्सन टू मेक 2 पैटर्न्स। अब 4 को 2 में बांटा उसने, ठीक है, थोड़ी सी जगह जगह हो गई, बट आपको ट्रेंड क्लियरली समझना। सो फिगर्स आर मच बेटर देन द वर्ड्स। अगर आपका काम ऐसा है जिसके अंदर आप फ्लोरेसेंस कर रहे हैं, यूवी कर रहे हैं, आईआर कर रहे हैं, बाकी कुछ कर रहे हैं, तो अगर आप अच्छे वाले ग्राफ्स विजुअलाइजेशंस करवा रहे हैं तो आपका पेपर बहुत जल्दी डिस्कसिंग रिजल्ट्स। रिजल्ट सेक्शन में रिजल्ट बताना होता है, डिस्कस नहीं करना होता, क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिजल्ट एंड डिस्कशन के अंदर कहां पे आप रिमार्क कर रहे हैं। रिजल्ट इज, मैंने ये एक्सपेरिमेंट करा, मैंने एनएमआर दिया, एनएमआर में 4 पीक आए। डिस्कशन इज ये 4 पीक क्यों आए। अगर मुझे डबलेट दिख रहा है या ट्रिपलेट दिख रहा था, वो डबलेट और ट्रिपलेट किस वजह से हुआ, या उस डबलेट और ट्रिपलेट से जो मैं स्ट्रक्चर असाइन कर रहा हूँ वो कैसे हुआ, ठीक है। ये रिजल्ट एंड डिस्कशन का मोटा मोटा डिफरेंस है। डिस्कशन में नेवर मेक ग्रैंड क्लेम्स। व्हाई, हम बहुत बार पेपर लिखते हैं, कहते हैं दिस मॉलिक्यूल कैन क्योर कैंसर। हम ऐसे कैंसर बहुत बार शुरू में क्योर कर चुके हैं, और कोविड-20 जो अपना 20 वाला था, कोविड-19 है, वो हम हर चीज से क्योर कर सकते हैं, है ना, बट वो किसी चीज से क्योर नहीं हुआ। जब हम ये ग्रैंड स्टेटमेंट्स बोलते हैं तो रिव्यूअर आपसे और डाटा मांग सकते हैं, और बाय चांस गलती से आपका पेपर अगर हाई और ज्यादा इंपैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में होगा तो आपके अंदर लालच होगा कि अच्छा मैं 2 एक्सपेरिमेंट और कर देती हूँ, क्या कर देता हूँ, इस डाटा से मैं शायद आ जाए 10 इंपैक्ट फैक्टर का पेपर। बट उसके अंदर क्या होगा कि हो सकता है वो 4 महीने एक्स्ट्रा लगाने के बाद
2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाने के बाद आपका पेपर रिजेक्ट कर देते। ठीक है, मेरे साथ हुआ था, मैंने पेपर भेजा, उन्होंने मुझे 1.25 साल तक एक्सपेरिमेंट मांगते रहे, डाटा मांगते रहे, एंड में जाके रिजेक्ट कर दिया। अब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो क्या करें, तो हमने उसको 4 अलग पेपर कर दिए, उसमें इतना डाटा होता। सो आई फाइनली एंड अप पब्लिशिंग 4 पेपर्स ऑफ 2.5 इम्पैक्ट। 10 का तो एक नहीं मिला, हाँ 2.5 के 4 मिले। बट हुआ क्या कि मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। जो मैं साइंस कम्युनिकेट करना था वो 1 साल लेट हो, वो नहीं होना है। सो नेवर मेक बिग क्लेम्स, क्योंकि नेवर मेक ओवरस्टेटिंग स्ट्रेंथ एंड अंडरस्टेटिंग द लिमिटेशंस। कई बार क्या करते हैं, हम सिर्फ अच्छा बोलते हैं कि जी हमारे पास सबसे अच्छा मॉलिक्यूल है, सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, सब कुछ अच्छा है। बट हम ये भूल जाते हैं जब ये रिव्यूअर के पास जाएगा, वो भी साइंटिस्ट है और वो भी सेम एरिया से होगा, उसको कहीं ना कहीं लिमिटेशंस पता होंगे, तो वो आपसे वही लिमिटेशंस पूछेगा। ठीक है, सो अगर आपके मॉलिक्यूल या आपके काम में लिमिटेशन, तो वो लिमिटेशन पे डिस्कस कर लीजिए। एक बार 2 पासिंग लाइन, बहुत ज्यादा पासिंग लाइन में कि दिस मॉलिक्यूल इज यूज्ड बट सॉल्युबिलिटी इज अ इशू। लाइक मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है बायो एक्टिविटी के लिए, बट एट द सेम टाइम मुझे पता है कि मॉलिक्यूल की कैटेगरी सॉल्युबल नहीं है बहुत ज्यादा, उसकी सॉल्युबिलिटी की प्रॉब्लम है। लाइक एंट्रासिन के मॉलिक्यूल लेके, अगर एंट्रासिन के बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स की बहुत सॉल्युबिलिटी रहती है, मैं कहता हूँ एंट्रासिन के मॉलिक्यूल लेके कैंसर की फोटोथेरेपी में यूज करें मैंने और बहुत अच्छा होगा। बट मुझे पता है कि उसकी फोटोथेरेपी में हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी इशू हुआ है, तो वो भी आप बता दीजिएगा। वी आर वर्किंग ऑन दिस इन लैब including new results in this session. This is normally comes when manuscript come after revision कि एडिटर ने कहा बट आपने उसको डिस्कशन में तो डाल दिया बट रिजल्ट्स में नहीं करा, तो ये आपको फिर हमें मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीज देनी पड़ती है। ये मैंने पिछले महीने ही काम करा है, एक मैन्युस्क्रिप्ट आई, रिवीजन आया, मैंने फिर ऑथर को सबमिट करके वापस दे दी कि आपको ये डिस्कस करा है बट वो रिजल्ट्स में नहीं है, प्लीज डिस्कस करिए। क्योंकि जो एडिटर जो पीयर रिव्यूअर थे उन्होंने 3 डायमेंशनल एनएमआर स्टडीज मांगी थी, उन्होंने डिस्कस कर दी, बट जो एनएमआर थे 3 डायमेंशनल वाले वो 2D एनएमआर वो डिस्कस नहीं करा, लगाई नहीं। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, हमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए डिस्कशन में। कई बार आप देखेंगे पेपर्स के अंदर जो डिस्कशन सेशन स्टार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन के अंदर जो मैं आपको बताता था कि कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई, वहां से लोग स्टार्ट करते हैं, वो नहीं होता। यूजिंग 2 जर्नल इंप्लीकेशन स्टेटमेंट, वो भी नहीं। स्पेसिफिक लाइक साइंस डिस्कस करके एक यही जगह है जो आपको साइंटिस्ट बनाती है कि आपकी नॉलेज कितनी एरिया में, वो आप यहीं पे दिखा सकते हैं। बाकी सब तो प्रोसेस है कि आपने रिएक्शन लगाया, आपने वो करा, रिजल्ट आया, इंटरप्रिटेशन करा, बट डिस्कस करना कि आपने कैसे करा वो यहाँ पर आपका होगा। लैंग्वेज, ठीक है, मैं बाकी डिस्कस नहीं कर रहा, बट दिस आर द 4 मेन सेक्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। लैंग्वेज इज मोर इम्पोर्टेंट ना हमारे लिए इन इंडियन कंट्रीज। डिवीजन ऑफ टेक्स्ट इन सेंटेंस इन पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया कि पैराग्राफ 250 शब्द का, 250 से 300 शब्द का, सेंटेंस 15 से 20 वर्ड का, एक्टिव वॉइस चाहिए, इट विल बी बेटर। यूज ऑफ सुपरफ्लुअस फ्रेजेस एंड वर्ड्स, कई बार हम बहुत सारे बच्चे टॉफेल और ये वाली जो बाहर के एग्जाम होते हैं जीआरई की तैयारी करते हैं और फिर उसका होता नहीं है, तो वो हमारे क्लास ज्वाइन कर लेते हैं इंडिया में, बट वो वोकैबुलरी के अंदर 3000 शब्द याद करते हैं, तो वो वाले शब्द आ जाते हैं। नॉर्मली हम अपने एडिटोरियल ऑफिस के अंदर उनको कहते हैं शशि थरूर इंग्लिश। हम उसको बोलते हैं शशि थरूर इंग्लिश, क्योंकि आप अगर किसी भी बाहर वाले उस पर लिखेंगे ना पेपर्स के अंदर कोई भी बहुत, क्योंकि वो नॉर्मली बात करें, पेपर वो लिख के आपको बता रहे मैंने ये करा, इसमें ये रिजल्ट आया। अगर मैं हिंदी में लिखूंगा या अपनी नॉर्मल मदर लैंग्वेज में लिखूंगा तो मैं आसान हिंदी लिखता हूँ ना, मैं कोई कठिन हिंदी तो लिखता नहीं, तो नॉर्मल हिंदी लिखता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने कभी किसी ने लेटर वगैरह लिखा हो हिंदी में, तो उसके अंदर हम लिखते हैं वो वाला तो नहीं लिखते ना जो हम स्कूल में लिखते थे, आदरणीय पिताश्री, ऐसा वाला तो कभी नहीं लिखा होगा है ना, ठीक है ना। सो हम वही वाली बात यूज करते हैं कि नेवर यूज रॉन्ग टेंस, टेंस एंड मूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसा पेपर देखा जिसने एक ही सेंटेंस के अंदर
प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों यूज करें। मतलब हमारे कॉपी एडिटर बेचारे रो गए थे उस पेपर पे, वो कहते हैं भाई कैन यू डू दिस कॉपी एडिटिंग, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि आपको ध्यान रखना है। अब नॉर्मली क्या है कि हम टेंसेस भूल जाते हैं, मतलब मैं भी कहूँ मैं भी भूल जाता हूँ, हमारे पास भी एक अपनी गाइडलाइन होती है, हम भी वो देखते हैं, तो आप लोग भूल जाते हैं। तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं है अपनी ग्रामर को रिवाइज करने का। एक बार ग्रामर रिवाइज कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मतलब अगर मैं सिंपली पूछूं, जो हम 4th में पढ़ते थे, सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, नाउन वर्ब ऑब्जेक्ट वाली जो होती है, अगर मैं उस वाले क्राइटेरिया को भी सेंटेंस पे बिठाने में लगता हूँ तो उसमें भी बहुत सारे सेंटेंस नहीं बैठते, क्योंकि आप मेंटली आपको लगता है कि मुझे आता है, बट आप नॉर्मली क्या है कि आप उस तरीके से ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारे पास नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो इसलिए एक बार अपनी ग्रामर को प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आपको और भी रिसोर्सेज दूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, जो सभी मैंने बताया कि सेंटेंस क्या होता है, वो सेंटेंस पूरा होना चाहिए, नाउन वर्ब ऑब्जेक्ट जो होता है वो उस क्राइटेरिया में पूरा होना चाहिए। टर्म्स ऑफ वर्ड सिंपल, बिल्कुल 10th क्लास की इंग्लिश, कि अगर आप अपने किसी नॉन साइंस वाले दोस्त को भी समझाना चाहो कि आपने क्या करा, आप समझा पाओ। प्रोनाउंस को बहुत ध्यान से यूज करना होता है, ठीक है। देन करेक्ट स्पेलिंग एंड ट्यूटर्स। सो जो स्पेलिंग है आजकल तो बहुत आसान हो गया है कि आप वर्ड चेक कर सकते हैं, बट फिर भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी जो गाइड है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स का दूसरा वर्जन यूज कर रहे हैं, आप दूसरा कर रहे हैं, तो जब एक दूसरे के अलग अलग वर्जन को खोलते हैं तो वर्ड मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। एक और चीज हम आपको कहते हैं कि जब स्कॉलर वर्ड के ऊपर पीडीएफ बनता है उसे चेक कर लीजिए। हम लोग उसको नॉर्मली चेक नहीं करते, हम देते हैं ठीक है, बट कई बार जब पीडीएफ वो वाला भी बना रहा होता है स्कॉलर वर्ड सबमिशन सिस्टम या एडिटोरियल मैनेजर सिस्टम, वहां पे भी वर्ड मर्ज हो जाते हैं, तो प्लीज उसको भी चेक कर लीजिए। एक रीडिंग लगेगी उसके अंदर, बट इट विल मेक एरर फ्री। ओके, मेक श्योर बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब आर आइदर सिंगुलर और प्लूरल, ये ध्यान में रखना है। और बहुत सारी बात है, कई बार हमको पता है कि प्लूरल बनाने के लिए हम ईएस लगाते हैं, तो हर चीज में ईएस लगा देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, तो वो ध्यान में रखना है। कॉमन चीज, डू नॉट रन सेंटेंस टुगेदर विद ओनली कॉमा। कॉमा की बहुत ज्यादा आदत होती है, कॉमा लगा लगा कर सेंटेंस बड़ा करने की, नहीं, आपको कनेक्टेड वर्ड्स यूज करने हैं, लाइक एंड, सो, बट, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, बट सर सेंटेंस लॉन्ग नहीं हुआ है, क्योंकि वो तो मुझे कॉमा देना पड़ेगा सर, ऑक्सफोर्ड कॉमा, तो मुझे वो ऑक्सफोर्ड कॉमा देना पड़ेगा सर। This is again wrong. You never use a comma after and. It is an example, ma'am. It is an example. It is not in the sentence. It is exemplified. If you see, there is semicolon. No, that Colon, is sorry. just a diagram. Yeah, fine, fine. So this is a colon. So after colon, I am listing this. So I can put the comma after it. So you always start new paragraph with a new topic. जब भी आप पैराग्राफ शेयर करेंगे, हर पैराग्राफ का एक अपना मीनिंग होगा, तो आप ध्यान रखिए जब आप शिफ्ट कर रहे हैं, नया पैराग्राफ बना रहे हैं, तो आपका नया उसका मीनिंग होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन मत करिए, डू नॉट को पूरा डू नॉट लिखिए, छोटा वाला नहीं लिखना, ठीक है। दैट इज को आई डॉट ई नहीं लिखना, दैट इज पूरा लिखना है, ठीक है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, प्रोसीजर एंड मेथड। हम प्रोसीजर एंड मेथड जब भी अगर आप बायोलॉजी में थोड़ा सा काम कर रहे होंगे तो ये बड़ा होता है, क्योंकि आपका जो कोलैबोरेटर होता है वो बायोलॉजी लिखता है, वो मेथड यूज कर लेगा, हम केमिस्ट होते हैं, हम अपने उसके लिए प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, तो वो एक बात का ध्यान रखिएगा। एडजेक्टिव्स नहीं, मतलब आई ऑलवेज से दैट डू नॉट यूज एडजेक्टिव्स इन योर इंग्लिश, साइंटिफिक इंग्लिश, अवॉइड यूज ऑफ साइंटिफिक जार्गन्स, सिंपल इंग्लिश में लिखिए। दा, हम इंडियंस को दा से बहुत प्यार है, पता नहीं क्यों, बट बहुत ही प्यार है, ये अपने आप उगाता है हमारी राइटिंग में, ठीक है। तो इसका प्लीज ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज है इट, प्रोनाउंस। इट और दा हमारे मैन्युस्क्रिप्ट में ऐसे वैल्यू बनते हैं जिनकी कोई यूज नहीं होता, ठीक। कोलन और सेमीकोलन का यूज कहाँ पे आपको लिस्ट करना है, कहाँ पे आपको उसके लिए चाहिए, एसआई यूनिट हमेशा रखनी है, हर पेपर एसआई यूनिट यूज करता है, ये हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मली प्रॉब्लम आती है एसआई यूनिट की,
टर्की और ईरान से। हमारे यहाँ के पेपर्स में नहीं आते बिकॉज हम SI यूनिट से पढ़ते हैं। वी डू नॉट यूज दैट वे लाइक इट हैज बीन एस्टिमेटेड, इट मे बी आर्ग्यूड। इतना सारे वर्ड्स क्यों लिखते हैं? छोटा लिखिए, कम लिखिए। लेस फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड, लेस फ्रीक्वेंटली ऑफरिंग इंस्टेड यूज रेयर। जितना कम शब्दों के अंदर आप ज्यादा बता पाए। कीप आई आउट, मतलब जो मैं कहता हूँ कि नाउ और इट ना है। अगेन नाउ फॉर डिटेल्स, वो आपको ध्यान में रखना है। अगेन ये इंग्लिश वाली बात है कि इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, विच इज दैट। हम विच कहाँ पे यूज करते हैं और दैट कहाँ पे यूज करते हैं, ये बहुत मोर है। मतलब हम नॉर्मली इंग्लिश में बात करें तो दैट इज रिस्ट्रिक्टिव एंड विच इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। ठीक है, जहाँ पर मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन बतानी है कि हाँ ये इंफॉर्मेशन है, तो वहाँ पे विच। जहाँ पर मुझे नई इंफॉर्मेशन डालनी है वहाँ पे दैट। इफेक्ट एंड इफेक्ट यहाँ पे हम कंफ्यूज कर जाते हैं। कंपेयर टू एंड कंपेयर विद, ये भी एक डिफरेंस है। ये नॉर्मली प्रॉब्लम आती है जब बायोलॉजिकल एक्टिविटी वाला आपके थीसिस में काम हुआ, या फिर अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बैटरीज या वैसा वाला काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर होता है। टू इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। हमेशा डबल नेगेटिव अवॉइड करिए सेंटेंस के अंदर। ये एक बेसिक ग्रामेटिकल रूल है। एक के बहुत ही सिंपल एग्जांपल जो हमारी ट्रेनिंग में हमें दिया था, मेरे को पसंद है, मैंने कहा अगर आप ये दोनों को कंपेयर करेंगे यू कैन सी दैट। मैं आपसे बात कर रहा था रिसोर्सेज। ये है रिसोर्सेज, दिस इज ऑन माय डेस्क, ये मेरे डेस्क पर ACS स्टाइल गाइड। बहुत सारी लाइब्रेरीज में होती है, शायद आपकी लाइब्रेरी में भी हो, चेक कर लीजिएगा। मैनुअल फॉर राइटर्स, दिस इज अ गुड बुक, दीज ऑल फोर आर वेरी गुड बुक्स। प्लस कोर्सेरा, आपको पता है क्या है सबको। सो दिस इज लाइक ऑनलाइन कोर्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी विच इज फ्री। ये फ्री कोर्स है। अगर आप अपनी PhD के फर्स्ट सेकेंड ईयर में हैं या अगर आप इवन थर्ड ईयर में भी हैं, तो आई वुड से डू दिस फ्री कोर्स। आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत बढ़ जाएंगे। प्लस एक और वेबसाइट है राइटफुल करके, WRITEFUL, राइटफुल। So that is a website which uses phrases from like 1 lakh research papers. So कभी कभार क्योंकि हम लिख रहे होते हैं, हमको ऑथर्स ब्लॉक कहते हैं कि हम उसको लिख नहीं पा रहे, तो अगर आप उसमें टाइप करके लिखना चाहोगे तो वो आपको प्रॉम्प्ट्स देगा कि इसके अंदर ये डाल दो, ये डाल दो। तो कई बार उसमें क्या होता है कि जो ऑथर ब्लॉक होता है वो टूट जाता है, आपको जो लिखने का सीक्वेंस होता है वो बन जाता है। तो वो वाली ऐप भी आप चेक कर सकते हैं। प्लस एक और आप अगर देखेंगे नेपटेल के ऊपर भी साइंटिफिक राइटिंग की 1-2 कोर्सेज हैं, वो भी आप देख सकते हैं। बट दिस इज वेरी गुड कोर्स, लाइक आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस वन कोर्स टू एवरीबॉडी। एंड ये हमारे पिछले साल के सबसे मोस्ट रेड पेपर्स हैं। अगर आप पढ़ना चाहें, ये सारे ओपन एक्सेस हैं, even if they are in the subscription journal, they are open access. Thank you. This is for first next.